और भाई सीधे भोपाल का रुख करते हैं। तबलीगी इज्तिमा का आज आखिरी दिन है और इस वक्त दुआ चल रही है। सीधे शामिल होते हैं तबलीगी इज्तिमा में दुआ में। गाड़ी वाले आदमी बीच में घर को वाला है, ऐसे में चलेगा। अच्छा घुमाएंगे ये। तो भोपाल के आलमी इज्तिमा का आज चौथा और आखिरी दिन है। 3 दिन गुजर चुके हैं, दुआ जारी है।
وقوتنا وكل تحيتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو تجهلنا أم إلى قريب لسته أمورنا إلا الذي ساقطا علينا فلا نبالي لولا أن عافية الله تعالى نعوذ بوجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أهل الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك ولك الحكمى حتى ترضى ولك الحكمى حتى ترضى ولك الحكمى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغفر لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين فإن جريمتنا إلى أنفسنا فإنا إلى ضعف وعورة ونفس وخطيئة وإنا لا نذكر إلا برحمتك وإنا لا نذكر إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تخزنا في ذنوبنا عالم اللهم لا تخزنا في ذنوبنا عالم اللهم لا تخزنا في ذنوبنا عالم ولا تعذبنا في ذنوب علينا قادر ولا تعذبنا في ذنوب علينا قادر اللهم إنا نسألك حب رسولك وحب من يسرنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبنا عمل الاشياء الينا واجعل حبنا حب الاشياء عندنا وارفع عنا اعداء الدنيا بشوق الى لقائك من غير ضراء كنا ولكن من كنا اللهم اغفر السيئات اللهم اغفر السيئات اللهم اغفر السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد علم وذلك هو الفوز العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ما يجمعكم عافنا يا الله ما الخطايا شكر مغفرنا يا الله ما السيئات وحسنات وسترنا يا الله ما تكسر الرجل ولا الله ما تكسر الرجل ويسعنه عننا زمانه يا الله تكسر الذي والذي يمر على الستة على أمه والله تنظرنا تقبلنا والله نسكتنا عليك معاصمنا والله نسكتنا عليك معاصمنا والله نسكتنا عليك معاصمنا يا الله نسكتنا عليك معاصمنا والله يتكلم التكلم من أنت وراءنا يا الله نسكتنا عليك والله نسكتنا عليك يا الله نسأل دعوة المستقبل قربانيكم إذا فرمانا يا الله قربانيكم وكل فرمانا يا الله نسأل دعوة المستقبل يا الله نسأل دعوة حرامي من جماعتكم الرحمة ولعالمي نعم قائم وفا يا الله كل فرمانا وكل فرمانا يا الله ولعالمي من جماعة قائم وفا يا الله نسأل دعوة المستقبل وكل فرمانا يا الله
अल्लाह बनाए दुनिया जिसमें हमें तरीकात जो होता है और अल्लाह की नबी की सुन्नतों को उसमें हमारा नूर हुआ है और अल्लाह का रब फरमा कर फजल फरमा कर और अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे और अल्लाह दुनिया की कमी थी हमारे दिल में पैदा फरमा कर और अल्लाह आखिरत का शौक हमारे अंदर पैदा करना और अल्लाह जन्नत का शौक उसके दिलों में पैदा करना और अल्लाह जहन्नम का खौफ उसके दिलों में पैदा करना और अल्लाह अपने अलामत पर साबित कदम करना या अल्लाह अपने जिक्र पर और शुक्र पर और अल्लाह अपने तिलावत पर अपने इबादत पर और अल्लाह कलाम नेक पर हमारी मदद करना या अल्लाह हमारी गलतियों को दूर करना और अल्लाह बनाकर नफरत हरकत के जरिए अपना खुद उनको नसीब करना और अल्लाह हमारे दावत के जरिए हमारी इबादत में कमाल पैदा करना या अल्लाह हमारी गलतियों को दूर करना या अल्लाह जिसको हकीकत को हमारे दिल में उतार कर और अल्लाह अपने आवामों पर हमें तारीफ कदम करना और अल्लाह जमात की नकल हरकत के जरिए पूरे आलमी को प्रोग्राम को खत्म करना और अल्लाह उसके माबूद की और अल्लाह उसके दीनी मराजिद की और अल्लाह उम्मत के इल्मी मराजिद की और अल्लाह उम्मत के तमाम तहरीकों की और अल्लाह को हिफाजत करना और अल्लाह इस्लाम को मुस्लिम की हिफाजत करना या अल्लाह इस्लाम को मुस्लिम की हिफाजत करना और अल्लाह को मुस्लिम का मुस्लिम हाजिर है और अल्लाह को मुस्लिम का मुस्लिम हाजिर है और अल्लाह ने मुस्लिम को मुस्लिम को या
ये आलमी तबलीगी इज्तमा में इज्तिमाई दुआ भी जारी है। क़त्ल के इस दुआ मौलाना साद दुआ फरमा रहे हैं और 12 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद आलमी तबलीगी इज्तमा में मौजूद हैं। आज आखिरी दिन है तबलीगी इज्तमा का, जिसमें मौलाना साद क़त्ल के इस दुआ कर रहे हैं। मैंने हटाया हुआ है।
खुशबू से पैदा फरमा। ओ अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद साली नसीब फरमा। ओ अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद साली नसीब फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद दी हैं उनके लिए सहूलत के और उनके लिए तरबियत के और उनके लिए उनकी औलादों के इनके लिए आखिरी संगत बनने के और अल्लाह इनके लिए दीन के दाई बनने के इनको जरिया फरमा। और अल्लाह करम फरमा कर फजल फरमा कर जिस घराने से भी तुमने खैर कोई काम दिया है इल्म का या दावत का तस्मीर का या तारीफ का तस्कीर का या तस्कीर का और अल्लाह इस खिदमत को इस खैर को कयामत तक इनके घरों से जारी फरमा दे। या अल्लाह ने हमारे खानदान को और हमारे मुतालिकीन को उनके खानदानों को अल्लाह इस काम से महरूम न फरमा। या अल्लाह हमारी कोताही से दरगुजर फरमा कर हमें बहाने के तौर पर कबूल फरमा ले। तेरी कसम है कि तेरे जुनाह में कोई अमल पेश करने के काबिल नहीं। और अल्लाह हो रहा है अल्लाह तुम्हारे अंदर से इज्जत को निकाल कर हमारे अंदर अपनी काबिलियत की घमंड को निकाल कर तुम्हें फजल से कबूल फरमा ले। अल्लाह तुम्हें फजल से कबूल फरमा ले। रियायत सुन्नत से हमारी हिफाजत फरमा। इखलास और हिदायत हमारे अमल में पैदा फरमा। जो उसने इस मेहनत को साहबों को दिया है हम तुझसे अपने लिए तारीफ के लिए उसका सवाल करते हैं। करम फरमा कर फजल फरमा कर और अल्लाह ने अपने अदाओं से मकरूब न फरमा। हमारे इस पूरे मजमे को कबूल फरमा। इसके हर सालों को कबूल फरमा। कोई और बंदा भी तेरा इस मजमे में ऐसा होगा जिनकी आमीन तेरे कबूल होगी और अल्लाह को करम फरमा कर फजल फरमा कर उस बंदे के जरिए से वो हमारी आमीन को कबूल फरमा ले हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। और अल्लाह अपने फजल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई जैसे बैठे हैं ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहें। अपनी दुआएं अपने लिए जो मांगना चाहे मांगे। आज इंशाअल्लाह मुसाफिर होंगे। इन जाने वालों को अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को देखना भी इबादत है और सवाब की चीज है। ये दिक्कत अंगेज दुआ की है और आप देख सकते हैं कि सरों का इस समंदर 12 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद ने यहाँ पर इस आलमी इज्तिमा में शिरकत की है। भोपाल से रास्त आपने शिरकत की दुआ में। आज आखिरी दिन था तबलीगी इज्तिमा का जो दुआ के साथ इख्तिताम हुआ है। हाँ वो आ जाएगा। लगातार 4 दिन से यहाँ इज्तिमा चल रहा है और आज आखिरी दिन है आलमी इज्तिमा का। दुआ के साथ इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। मौलाना साद ने दिक्कत अंगेज दुआ फरमाई है और हुकूमत की जानिब से भी बेहतर इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और आज दुआ में शरीक होने के लिए कमलनाथ सरकार ने आधे दिन की छुट्टी रखी है और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। एक्स्ट्रा बोगीज़ ट्रेन के साथ लगाई गई और बसें भी चलाई गई हैं ताकि लोगों को वापसी में दिक्कतें ना हो। 12 लाख का एक बड़ा मजमा इस वक्त भोपाल के मैदान में मौजूद है जहाँ पर दुआ के साथ आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया। पुलिस ने भी अपने सख्त बंदोबस्त किए हैं और पूरे मैदान पर ये आप देख सकते हैं ड्रोन के ज़रिए नज़र रखी जा रही है। करना पड़ेगा। आज 12 लाख लोगों की वापसी का इंतज़ाम मकामी लोगों के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क से जो है लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं। बैरून ममालिक से भी यहाँ लोग पहुँचे हैं। तबलीगी इज्तिमा जो सालाना मुनक्किद होता है भोपाल को एजाज़ हासिल है। इस बार बड़ी तादाद में यानी 12 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। और अहम बात यह है कि इस इज्तिमा में ये इज्तिमा इस बार जो है ग्रीन इज्तिमा इसको कहा जाए और फ्री पोल्यूशन इज्तिमा एक तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पर भी तलकीन की गई है कि इज्तिमा गाह में पॉलीथीन का इस्तेमाल न किया जाए और सिगरेट गुटखा पान इस तरह की चीज़ों से परहेज़ किया गया है।
तो साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल इस आलमी इज्तिमा में रखा गया। और एक अहम बात यह कि इस साल के इस इज्तिमा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लोगों ने भी शिरकत की और इज्तिमा की तैयारियों से लेकर अख्ताम तक उन्होंने इसका जायज़ा लिया है। वो कह रहे फोन ही नहीं लग रहा इधर पे जो है। तो आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज चौथा और आखिरी दिन दुआ के साथ अख्ताम हुआ है। मौलाना साद ने दुआ फरमाई, तफसीली दुआ और क़तअंगेज़ दुआ की गई। मुल्क में अमन व अमान के लिए भी दुआ की गई है और मुसलमानों के मौजूदा हालात पर खुदा की मदद हासिल करने की दुआ की गई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक